Hello students, today we will discuss the remaining strategies of wildlife conservation. In last lecture we have discussed about protected areas. So what are the remaining one? First of all, hunting of regulation. So what is hunting regulation? Means to regulate the hunting or poaching of wildlife animals. First of all, we have to make strict laws to regulate hunting and poaching of animals. क्लियर मीन्स हमें या गवर्नमेंट को जो है वो स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए ताकि हंटिंग और पोचिंग पर कंट्रोल किया जा सके. ठीक है. फर्स्ट सेकंड वन इज हंटिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज. द स्पीसीज दैट आर अंडर डेंजर और यू कैन से दैट आर going to extinct in future should be banned. And third one is destruction of natural habitat of wildlife animal should be prevented. यानी कि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनके नेचुरल हैबिटेट को डैमेज होने से, उनको डिस्ट्रक्ट होने से बचाना चाहिए. Second one is captive breeding. So what is captive breeding? Captive breeding is breeding of wildlife animal in captivity has saved. Means the species that are under danger, or you can say the threatened species should be under captivity so that their number can be protected to extinct in future. For example, musk deer, lion, gir forest, etc. And what are wildlife breeding project in India? Means government of India starting breeding project to save the endangered species. गवर्नमेंट ने जो है endangered species को बचाने के लिए कुछ ब्रीडिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका प्रोजेक्ट टाइगर एंड गिर लायन प्रोजेक्ट. एंड अदर वन इज दीज आर द स्पीसीज दैट आर एंडेंजर्ड स्पीसीज: राइनो, एशियाटिक लायन, crocodile, blue whale, musk deer, etc. So what is Project Tiger? Project Tiger was launched in 1973 to save the tiger from poaching, means illegal hunting से बचाने के लिए चलाया गया था ये. And under this project 50 tiger reserve has been established. यानी कि 50 tiger reserve जो है वो establish किए गए इंडिया में so that we can protect the tiger from illegal hunting. Next one is Gir Lion project. This project was started by government of Gujarat in 1972. And in this project, Asiatic lion is protected from poaching or illegal hunting so that their number or जो species है should be protect from extinction, or you can say the protect from hunting. Legal provision for conservation of biodiversity. लीगली क्या प्रोविज़न चलाए गए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए. सो इन आवर कंट्री सेवरल लीगल प्रोविज़न और एक्ट आर रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. हमारी जो कंट्री है उसमें काफ़ी सारे कानूनी प्रावधान चलाए गए, एक्ट चलाए गए किससे, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए. ठीक है. And these are enacted by Government of India. These include Forest Conservation Act and Wildlife Protection Act. So first is Forest Conservation Act. Forest Conservation Act is the act in which government and forest department is empowered. किसके लिए उनको एम्पावर किया गया? टू क्रिएट एंड मैनेज रिजर्व फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट हैं, रिजर्व फॉरेस्ट हैं, उनको क्रिएट करने के लिए और उनके अंदर मैनेजमेंट करने के लिए, वहाँ उनको मैनेज करने के लिए. और जो गांव में यानी कि विलेज फॉरेस्ट हैं या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं उनको उनके अंदर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करने के लिए उनको पावर दी गई. कंजर्व फॉरेस्ट एज नेचुरल हैबिटेट. जो फॉरेस्ट हैं उनको हम, जो प्राकृतिक हमारी धरोहर है, हमारी जो विरासत है, उसको उस प्रकार से हम उसको संभाल कर रखें. कंट्रोल मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस. मीन्स जो फॉरेस्ट के अंदर प्रोडक्ट हम बनाते हैं उनके मूवमेंट पर, उनके आवाजाही पर रोक लगाना, उनके जैसे आयात या निर्यात एक्सपोर्ट पर
उसके ऊपर क्या किया जाए, रोक लगाया जाए। ठीक है। कंट्रोल एंड रेगुलेट केटल ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट, यानी कि जो कैटल्स यानी कि जो चरवाहे होते हैं जैसे शीप्स हैं, काऊ है, इनकी ग्रेजिंग को कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। सो व्हाट इज these आर अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन and what are wildlife protection act. In this act, what are the main objective? First of all, prohibition of hunting means wildlife को हम कैसे बचा सकते हैं, hunting पर रोक लगाकर। सबसे पहले हमें किन की हंटिंग रोकनी चाहिए, थ्रेटनिंग स्पीसीज, यानी कि द स्पीसीज दैट आर अंडर डेंजर। ठीक है, इसमें आपके रेयर स्पीसीज आ गए, अनडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीसीज सब आ जाएंगे। सेटिंग अप एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि जो हमने प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए हैं टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, तो उनको हम क्या करें, उनको सेटिंग अप यानी कि उनको सेट करें, उनका ध्यान रखें, उनको मैनेज करें, उसके अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करें, चेक करें टाइम टू टाइम। एंड थर्ड वन इज़ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कैपिटिव ब्रीडिंग। कैपिटिव ब्रीडिंग एज आई टोल्ड यू इन लास्ट टॉपिक, कि कैपिटिव ब्रीडिंग का कंट्रोल और उसका मैनेजमेंट किया जाए सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पीसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन। प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्लांट एंड नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स, कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स जो अंडर डेंजर हैं उनको, एंड जो नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स हैं उनको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एज एंड forest also. Clear? So this is all about your chapter. Our chapter is completed. If you have any doubt then you can message and call me personally. Okay, see you soon in next chapter.